नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लवकुश रामलीला में हैं। हमारे साथ रामायण जो रामलीला यहाँ पे 10 दिन हुआ है, पूरा भारत देख रहा था। तो लवकुश इज़ द बेस्ट रामलीला हैपनिंग एंड वी हैव गगन मालिक जी हु इज प्लेइंग द मेन सेंट्रल रोल ऑफ राम। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर 10 years एंड आप व्हाट यू वांट टू गिव द मैसेज जो हमारे समाज में जो राम का है एक बहुत बड़ा स्थान है पूरे मतलब वर्ल्ड में। तो when you play such kind of roles in life, you have the biggest responsibility on your shoulders, which will weigh the whole universe. And I think I am blessed enough to play the same role for several times, and the response of the audience was immense. Like, yesterday even Kangana Ranaut also came as a chief guest, and governor came, CM Mr. Kejriwal also came, and many other ministers even came in the past, like our central ministers, and some of them have played some roles also. He played Vishwamitra for one day. It's all their respect for Lord Ram, and as soon as we go to the stage, people don't look at you as Gagan. They look at you as really Lord Ram, and it's a live show. There are no retakes, so you have to perform well. You have no other choice, and to do the justice to the role, it's a quite a tough thing to do. So, but we are very well prepared. We worked hard. Even Love Kush Ramlila committee have given us all the things that we need. A great support by them in that way, in organizing it in a best possible way. And I believe now is the time for the people to understand the true meaning of Jai Shri Ram. Right. Time has come that you should understand that just by saying Jai Shri Ram is not done. You will not just become Hindu. Okay, I'm saying Jai Shri Ram. We need to learn the definition of a good brother, good husband, good student, and a good king. Even we need to understand the real definition of a devotee to the Lord, like as Hanuman. All the beauty of the relationship of the today's world is being seen in this Ramayana. If you say हिंदुओं के जीवन का आधार is Ramayana, all the sanskar, all the culture have come from Ramayana only. And if you ask a small kid today, he might not know who is Bali, who is Sugriv, who is Meghnad, who is Dadibal, who is Muni Agastya. They don't know nothing. And there is a lot to learn in every bit of it, every piece of it. So now the time has come for people to bring the teachings of the Lord Ram or Ramayana into their life and start practicing. Then you are eligible to say Jai Shri Ram, that okay, yes, I follow, I practice, but I have learned. But people are just too much into, I believe, in prayers, that will not give result. The karma is very, very important, and dharma is also very, very important. That we need to learn from Lord Ram. So we have tried our best to present it to the best way, in the easiest way, so that people can understand the definition. And I hope this will continue every year, so that somehow we can teach the youth, which is the future, the real meaning of the dharma and the truth of life. जैसे अभी श्री राम ने हमें बताया है, और मेरा अगला सवाल है राम मंदिर को लेके, जो कि जनवरी में 2024 इट्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन एंड डिवोटीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड जो NRI सेटल्ड हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंडिया विजिट फॉर दैट श्री राम टेम्पल. तो आप क्योंकि अब राम का रोल कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ कल मैं देख रहा था कि आप लोग को जैसे जब हम लोग कर रहे हैं तो हमारा सिर झुक रहा है, क्योंकि भगवान के सामने एक डिवोटी को सिर झुकाना है, उनके चरण छूने हैं. एंड जैसे आपने बोला द स्टार्स हु आर कमिंग और द मिनिस्टर्स, वो भी आपको आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो उनमें भी एक भावना आ रही है. तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस टेम्पल जो बनने जा रहा है? देखिए, जो भव्य मंदिर राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, कई सालों की मेहनत है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, और उसका स्वागत है. बहुत अच्छी बात है कि वो भव्य मंदिर बना रहे हैं. एक स्ट्रॉन्ग हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक बड़ा कदम होगा. प्रभु राम की जन्मभूमि है, तो सभी लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है. लेकिन मैं साथ साथ अभी भी यही कहूँगा कि आपको धर्म का आचरण करना ही होगा. अगर आप धर्म का आचरण नहीं करेंगे, आप एक नहीं 1000 मंदिर बनवा लीजिए,
तो आप कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते, कभी जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। आपको धर्म का जो आचरण है, जो आप सीख रहे हैं रामायण से, प्रभु राम से, वो अपने जीवन में लाना ही होगा। अब वो समय आ गया है। तो बहुत खुश हैं कि हम चाहते हैं कि NRI आएँ, इस भव्य मंदिर को देखें और खूब अच्छे से आगे बढ़ें। हमारे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब हम स्टेज पर जाते हैं तो वहाँ उनको गगन नहीं दिखता, वहाँ उनको प्रभु ही दिखते हैं। और प्रभु के आगे आप मंत्री हैं, आप अमीर हैं, या आप अपने बड़े ओहदे के हैं, वहाँ सब झुक जाते हैं। और ये बात सराहनीय भी है कि मंत्री भी आते हैं। इनफैक्ट हम अयोध्या गए थे, इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सर झुकाया वहाँ पे आरती की। तो वो वहाँ पर उनकी एक आस्था है जिसमें वो आपको गगन ना देख के, एक्टर ना देख के, प्रभु का रूप ही देखते हैं। और ये बहुत लोगों के लिए एक सीख भी है कि प्रभु के आगे सिर झुकना चाहिए। राइट। एक आखिरी चीज़, क्योंकि जैसे पहले भी वी हैव मेट एंड आपने वो सुनाया है, डायलॉग नहीं कहना चाहूँगा मैं उसको, जब आपको बोला गया है वनवास, तो आपका वो एक क्षण, उसको आप यादगार बनाया आपने, उसको आप सुना देंगे दर्शकों को। देखिए कि उस समय दशरथ जो थे पिता श्री राम के, बहुत उदास थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस मुंह से राम को कहूँ। मैं मतलब एक पिता की जो सबसे प्यारा पुत्र, वो उसको कहे कि तू 14 साल के लिए जंगल में चला जा, वनवास चला जा, कोई बहुत बड़ी बात थी उस समय उनके लिए, तो बहुत मुश्किल था। बट कहीं ना कहीं राम उस लाइन को बहुत अच्छे से समझते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो पिताश्री के पास वो आते हैं, तो उनको बोलते हैं, पिताश्री आप अधीर ना हो, आपने जो वचन दिया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा, और आप चिंता ना करें, मैं 14 वर्ष का वनवास काटकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। मैं यूं गया और मैं यूं आया। और ऐसे करके आशीर्वाद लेकर जाते हैं। उसमें वो उनका डायलॉग आता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उनको वो समझाते हैं कि यदि आपने मुझे रोका तो रघुकुल रीत जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप मुझे आज्ञा दें, आपके वचन आपका ये पुत्र अवश्य पूरा करेगा। करके फिर वो आपका बहुत बहुत हम तो आपसे नतमस्तक ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ लेफ्ट में हनुमान जी हैं, श्री हनुमान, जो आपके परम भक्त हैं, और राइट में महादेव हैं। बिकॉज इन महादेव, तो आप अपने जो फेलो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, फेलो आर्टिस्ट जो हमारे हैं वो सारे बहुत ही अच्छे उम्दा एक्टर्स हैं। मुंबई से आए हैं सभी लोग, एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। कभी किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं रहा। इनफैक्ट हम जो हमारी टीम है, हम बिलीव करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने का। उससे क्या होता है कि हमने सबको ये बात कह दी, आज हम रामलीला कर रहे हैं तो रामलीला का हीरो राम, हनुमान या महादेव या कोई नहीं है। रामलीला का हीरो रामलीला ही है। अगर रामलीला अच्छी होगी, वो हिट होगी, तो आप समझ जाइए आपने उस किरदारों के साथ न्याय कर दिया। तो एक्टर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो सीता हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे हनुमान हो। बहुत पुराने मित्र भी हैं, पहले भी सबके साथ काम कर चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि परिवार में वापस आ गए, एक परिवार वाला माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम। और मैं यहाँ बैठे हुए कंटिन्यूएशन में ही मैं महादेव को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ और उनसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको, क्योंकि आप भी इस मंच पे काफ़ी सालों से हैं, तो जैसे अभी श्री राम ने एक संदेश दिया है विश्व के लिए, तो आपका क्या संदेश रहेगा? बस मैं यही कहूँगा कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। जो हमारे भारतवर्ष आर्यावर्त का संस्कृति सभ्यता है, इसको कायम रखें और आपसी द्वेष मिटाते हुए, जात पात को मिटाते हुए ये भारत की संस्कृति को कायम रखें। जय श्री राम। महादेव जी को मतलब सब लोग ही प्रणाम कर रहे हैं, जितने भी लोग बैठे। मेरा दूसरा अब जो मतलब सवाल है वो हनुमान, श्री हनुमान और हनुमान जी की भक्ति, मतलब वो हरदम ही है। मतलब बचपन से ही हम लोग बोलते हैं बजरंगबली की जय। कभी हम लोग का डर होता है, भय होता है, तो प्रभु राम संकट मोचन, तो हम लोग श्री राम का नाम बाद में लेते हैं। हमें समझाया जाता है कि श्री राम का नाम लोगे तो फिर सब कुछ ही सृष्टि आपके मुट्ठी में है। तो हनुमान जी आपको बहुत बहुत शत नमन। और आपको कैसे लगता है इस रोल के बारे में, और आप भी कुछ एक डायलॉग? मेरे को हनुमान जी का रोल करना, मेरे को क्या किसी को भी ऑफर होगा तो उसके सौभाग्य की बात होगी उसके लिए। और मेरे को इस जीवन में हनुमान जी का रोल निभाने का कई बार मौका मिला है, तो मैं अपने आप को बहुत
बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा एक रोल मिला है जो हर एक एक्टर करना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, और ऐसा महसूस भी होता है कि भगवान की कृपा है मेरे पे, तभी जाके मेरे को ये रोल मिला है। क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं, लाखों एक्टर्स हैं, हज़ारों एक्टर्स हैं, बहुत कम लोगों को ऐसे रोल निभाने का मौका मिलता है और जो इसको ढंग से निभा पाते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद से ही मिलता है। और बहुत ही अच्छा लगता है हनुमान जी का कैरेक्टर निभाने में। और ये कपड़े जितने भी आप मेरे देख रहे हैं, मेरे टेल लगी हुई है, पूंछ है मेरे, ये सब है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम किया था थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता था क्योंकि बैठना पड़ता है और कई चीज़ें होती हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल इसमें कंफर्टेबल हो गया हूँ, तो कोई दिक्कत की बात आती नहीं है रोल निभाते हुए। अभी क्योंकि कोरोना काल से सब लोग हम लोग गुजरे हैं, तो हनुमान जी को वो संजीवनी बूटी जब लेके आए हैं, तो सब लोग मानते हैं आजकल जहाँ भी जाएंगे कि वो हनुमान जी ने बचाया हमें, वो वैक्सीन लेके आए और कहीं कहीं उसकी प्रदर्शन भी हुआ है। तो आपको जब आप संजीवनी बूटी लेके आते हैं लक्ष्मण के लिए, तो उसका कैसे मूवमेंट आपको कैसे लगता है जब आप आकाश मार्ग से जाते हैं? हाँ, तो ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, हमारी संस्कृति है, जो पहले घट चुका है उसी का हम नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि मेरे को हवा में उड़ा के लेके जा रहे हैं हार्नेस से और लेके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है इसमें कि कुछ बहुत अच्छा काम करने, प्रभु का काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो प्राउड फीलिंग होती है। एक आप माता सीता और श्री राम और सबके लिए कुछ बोलना चाहेंगे जो आप स्टेज पे बोलते हैं? सबके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि सीनियर एक्टर हैं, प्रभु श्री राम के साथ तो मैंने काफ़ी काम किया हुआ है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है उनसे कि कैसे भाषा में ठहराव आना चाहिए और लाइनें कैसी बोलनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उनको बॉडी लैंग्वेज भगवान की कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें सीखने का बहुत मौका मिला है और बहुत अच्छा लगता है। आपका कोई डायलॉग, मतलब वो जो आप डायलॉग सर मेरे बहुत सारे, मैं कोई भी एक सुना ऐसा एक डायलॉग कोई लंका पे जब मतलब या फिर श्री राम को जब आप मतलब उनके आपके दिल में पास वो लेके आते हैं अंगूठी जो हाँ। उनकी मुद्रिका, राम ने मुद्रिका जो थे, हाँ। उस डायलॉग मुद्रिका में लेके आता हूँ माता सीता के पास से, तो माता सीता थोड़ी व्याकुल सी, मतलब मेरे को देख के डर जाती हैं कि वो उनको लगता नहीं है कि ऐसे लंका के अंदर कोई वानर आ सकता है। तो मैं माता को देख के नॉर्मल सा बोलता हूँ कि माता आप चिंतित ना होइए, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पे आएंगे और आपको ले जाएंगे। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आशा करते हैं कि जैसे आप लोग ने मतलब एक वो जो चित्र अपने भारतवासियों को जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आगे भी चल के हम लोग को आपका सबका आशीर्वाद मिलता रहे। जय श्री राम और जय श्री हनुमान। और महादेव तो उनको भूला नहीं जा सकता। प्रणाम। हाँ सर, आपका भी चाह रहे थे हम सुमंत जी हैं उनके फूफा। हाँ, तो आपका भी इंट्रोडक्शन करके आप बताइए 2 शब्द। सर आप बोलिए सर। मैं वीरेंद्र कुमार, हाँ जी, आपका रोल के बारे में थोड़ा सा बताइए। सुमंत का रोल कर रहा हूँ और मैं अयोध्या वासी हूँ। प्रॉपर अयोध्या से हैं? जी, प्रॉपर अयोध्या वासी। नाम तो कैसा महसूस हो रहा है आपको लव कुश के मंच पे? लव कुश का मंच बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे किरदार बहुत ही अच्छे ढंग से अपना अपना रोल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। एक डायलॉग सुना दीजिए जो हम लोग ने मतलब मिस करा हो। एक डायलॉग सुना दीजिए कोई। जय श्री राम। जय श्री राम तो वो आपका अल्टीमेट हो गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग आशा करते हैं कि सब लोग आप लोग से मतलब जो आज भरत मिलाप है तो उसमें सब लोग आपका हम लोग देखें रूप। जय श्री राम। आपका भी टेक योर ब्लेसिंग्स सर, योर ब्लेसिंग्स। या